गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हमने डिस्कस किया था हेनरीज लॉ, वेपर प्रेशर। तो इसी कंटिन्यूटी में आज हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करेंगे। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सोल्यूट है वो भी लिक्विड है और सॉल्वेंट है वो भी हमारा लिक्विड है। तो जो राउल्ट्स लॉ है इसमें हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करेंगे और ध्यान रहे वी विल टॉक अबाउट ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस, दैट इज solution having two components, solute and solvent. So we will restrict our study to binary solutions only. In 1886, a chemist named Francois Raoult gave a relationship about vapor pressure and mole fraction of liquid liquid solution. Suppose this is our container or beaker, you can say it is containing solute and solvent. So here solute is liquid, solvent is liquid. Both are liquid and both are volatile as well. So here you will find the vapors of solute as well as solvent. In the vapor phase there will be vapors of this solute as well as solvent. जो vapor pressure होगा ऊपर इस solution के, it will be suppose vapor pressure due to solute is P1, okay, and vapor pressure due to solvent is P2, right? जो इसके ऊपर सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर होगा इट विल बी द सम ऑफ P1 एंड P2, दैट इज the sum of individual components, or you can say sum of partial pressures of solute and solvent. Let us discuss a different situation in which we have taken the pure component, that is solute A. Solute is our liquid, pure solute आपने लिया है. It will have a pressure which we denote by P01. हमने प्योर सोल्यूट लिया है, इसके अंदर उसका जो प्रेशर है उसके ऊपर इट इज P01. सिमिलरली इफ वी टेक प्योर सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर विल बी सपोज P2. Generally we give the subscript 1 to solute and 2 to solvent. You can change also. This is the situation when they are pure. Individually they are taken in pure form. And this is the situation when solute is dissolved in solvent and there is interaction between solute and solvent. Here is pressure P1. So Raoult gave a relationship about the vapor pressure of liquid solution and he said in Raoult's law, with the vapor pressure of a component is direct to its mole fraction x present in the solution. What I am trying to say, just try to understand, dear students.
Here I have shown the situation when their individual components, that is solute and solvent, are pure. Here we are talking about the situation when we have prepared a solution. So according to Raoult's law, the vapor pressure of a component, suppose I am talking about solute and I have given the number 1 to solute. So according to Raoult's law, P1 is directly proportional to X. X is the mole fraction of the solute in this solution. एक सीधी सी बात है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर सोल्यूट का कंपोजिशन, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा बनेगा, क्योंकि हमने इसको क्या लिया है, हमने उसको वोलेटाइल माना। वोलेटाइल मीन्स जो इजीली वेपराइज हो सके। सिमिलरली अगर सॉल्वेंट का कंपोनेंट ज़्यादा, जनरली हम सॉल्वेंट का ही ज़्यादा लेते हैं, बाय डेफिनेशन भी हम बताते हैं कि विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, उसको सोल्यूट बोल दिया, उसको दूसरे को सॉल्वेंट बोल दिया। तो डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा इनके मोल फ्रैक्शन पर, दैट इज इसके अमाउंट पर, कि इसका अमाउंट कितना प्रेजेंट है। तो जितना यहाँ होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वेपर प्रेशर भी ऊपर उतना ही ज़्यादा होगा। वी हैव taken it in the form of this equation, P1 is directly proportional to X1, where X1 is the mole fraction of solute in the solution. Similarly, P2 is directly proportional to X1. Okay, if we remove this sign here, I can put P1 is equal to P01 into X1. Similarly here I can put P2 is equal to P02 X2. Dear students, do not forget to look on these two figures. Here I have removed this proportionality constant and put P1 naught. What is P1 naught? P1 naught is the vapor pressure of the pure solute. Solute भी हमारा लिक्विड फॉर्म में है। जब वो प्योर था, अकेला हमने सोल्यूट लिया, उसका वेपर प्रेशर उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर P01 था। सिमिलरली सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जिस पर हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है उस पर P02 है। These are constant. So here you can understood it in any way. हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, उसकी जगह ये लगाया, उसकी जगह ये। अब if you remember the chapter states of matter from class +1, there we used to talk about Dalton's law of partial pressures. What it says, अगर आपके पास एक सिस्टम है of n number of components, then total pressure of the partial pressures of these individual components. What I am trying to say, suppose you have a system of 3 components. Suppose आपके पास बेटा एक सिस्टम है 3 कंपोनेंट्स का, और आप इस सिस्टम का P टोटल निकालना चाहते हैं, टोटल प्रेशर। इट विल बी द सम ऑफ P1, P2, P3. व्हाट आर P1, P2, and P3? These are the partial pressures of component 1, 2 and 3. Right? Component partial pressure of component 1, 2 and 3. 4 होंगे तो चारों को जोड़ देंगे। This we have studied in class +1. This was Dalton's law of partial pressure. What we will do here? Here our system is consisting of 2 components. So P total is equal to students, P total is equal to P1 plus P2. हमारा जो सॉल्यूशन है उसका जो टोटल वेपर प्रेशर है, इट इज द सम ऑफ these 2 components. If I use these 2 equations, P0 x1 plus 2, and you know the mole fraction of all the components is equal to 1, or you can say the sum of the mole fractions of all the components is always 1. What I am trying to say? x1 plus x2 is equal to 1. This will be. So x1 is equal to 1 minus x2. Are you getting my point? P total is equal to
P naught 1, substitute this value 1 minus x2 plus P naught 2 x2. Here I can write P naught 1 minus P naught 1 x2 plus P naught 2 x2. Okay, here I can take x2 common, P naught 1 plus x2 x1 outside the bracket P. Similarly, I can substitute x2 equal to 1 minus x1. Then accordingly, I will get equation in another form. P1 naught minus P1 x2. x2 I have taken comma. Oh, it is wrong here. Sorry. P naught 1 minus P naught 2 minus P1 into x2. This is our P2. Please note this fraction. Here we have expressed the total pressure of the solution in terms of mole fraction of one component only. If I substitute x2 equal to 1 minus x1, then I can express this P total in terms of parts mole fraction of component 1, that is x1. Okay, these are Raoult's law. See, let us represent this Raoult law in graphical form. Graphical presentation of Raoult's law. राउल्ट्स लॉ की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें, बच्चों मैंने बताया कि जो प्योर कंपोनेंट है उसका प्रेशर P naught 1 था और जो प्योर कंपोनेंट सेकंड था उसका प्रेशर P naught 2 था. लेट अस हैव अ लुक. It's very easy, but the only thing is that you have to take care of the basic concepts. See, I have taken this component. This is 0, this is 1. Along this axis, I have taken mole fraction. मैंने x axis के along mole fraction को लिया है, y axis के along I am taking the vapor pressure. Right? जब मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का मैक्सिमम होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम होगा. सपोज हियर इज द मोल फ्रैक्शन 1, दिस इज द प्रेशर कोरस्पोंडिंग टू दिस मोल फ्रैक्शन. जब मोल फ्रैक्शन 1 है तो उसके कोरस्पोंडिंग प्रेशर मैक्सिमम आपको मिलेगा. यही तो राउल्ट्स लॉ कहता है. अगर मोल फ्रैक्शन कम है तो यू विल गेट लेस प्रेशर, यू विल गेट लेस प्रेशर, यू विल गेट लेस प्रेशर. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जॉइन दिस टू दिस. This is an equation of a straight line from Raoult's law. P1 is equal to P naught 1x. There is an equation of a straight line in the form y is equal to mx. Here c is 0, intercept on y axis is equal to 0. Raoult's law से हमें इक्वेशन मिली. ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर y इज इक्वल टू mx. एक इक्वेशन और होती है स्ट्रेट लाइन की जिसमें हम लिखते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c. जो c होता है वो इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पर. हियर you are seeing in this equation y corresponding to pressure, vapor pressure, that is the partial pressure of that. m here is constant, that is slope. Right? This is the equation of a straight line. So similarly दूसरे कंपोनेंट के बारे में अगर मैं प्रेजेंट करता हूं, जैसे ही हेयर x1 को लिया है हमने, हेयर आई एम टेकिंग x2 0 1, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन. राइट? अब बहुत सारी बुक्स में आपने देखा जो या देखेंगे आप, राउल्ट्स लॉ को जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है. डिफरेंट कुछ नहीं होता, उसमें दो ग्राफ को हम कलर करते हैं इन वन ग्राफ. सी हाउ. अगर हम प्योर ले रहे थे तो हमारे पास ऐसा ग्राफ आ रहा था. मैं देखिए इन ग्राफ्स को ना अब क्लब कर रहा हूँ. व्हाट आई विल डू, आई विल फिक्स दिस फर्स्ट ग्राफ एज सच, सो आई एम गेटिंग अ लाइन. दूसरे ग्राफ को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ. आई एम गिविंग अ रोटेशन थ्रू 180 डिग्री.
I will get graph like this. Okay, here is 1, here is 0. Okay, you are getting the line like. अगर उस ग्राफ को आप दूसरी डायरेक्शन में चेंज करें तो ऐसा ग्राफ मिलेगा, और इसको इसी ग्राफ में अगर हम शो करना चाहें, इन दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ में दिखाना चाहें। अब देखो, पहला ग्राफ मैंने ऐसा लिया है, यहाँ पर मैं वेपर प्रेशर ही ले रहा हूँ, राइट। इस ग्राफ में मैंने क्या लिया, x1 इज इक्वल टू 0 है और x1 इज इक्वल टू 1 है। अब मैंने ग्राफ को थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, हियर x2 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखें, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि मैंने जो रॉल्स लॉ का ग्राफ ड्रॉ किया, दोनों ग्राफ को मैं क्लब कर रहा हूँ। these are the individual ग्राफ्स, दोनों को मैंने क्लब कर दिया। पहला ग्राफ मैंने ऐसे रखा, दूसरे ग्राफ को रोटेट किया। पहले ग्राफ में x1 0, x1 इक्वल 1, दोबारा 0 उधर चला गया, 1 इधर आ गया, 1 0, दिस इज फॉर कंपोनेंट 2। और इसका ग्राफ ठीक, और ये हमने ऐसे, बेसिकली इट इज लाइक दिस। सो यहाँ पर ये जो आ रहा है, ये दिस इज माई P1 एंड व्हाट इज नॉट P1, P01 प्योर कंपोनेंट। अगर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, इट विल बी P2, राइट। बट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो दोनों का सम होगा। वेपर प्रेशर दोनों का सम होगा कैसे? अब ये लाइन कहां से आई? जब आप ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ये क्या है? दोनों का सम है। दिस इज P टोटल। P टोटल क्या है? P1 प्लस P2। दिस इज P1 प्लस P2, ठीक है। अब ये देखिए, अब आप हैरान थोड़े से हो रहे होंगे कि ये अगर मोल फ्रैक्शन 1 हो जाए, xt1 पुट कर दोगे तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट। तो यहाँ पर आप P1 नॉट लिखें या P1 लिखें, प्योर में ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। प्योर में P1 एंड P नॉट 1 बोथ विल बी सेम। ओके, सो टू अवॉइड कंफ्यूजन आई एम राइटिंग हियर P1 एंड P2, सिंपल। बट वंस अगेन आई एम सेइंग इफ दे आर प्योर कंपोनेंट्स सेपरेटली, दिस P1 is equal to P1, x1 हो गया, मोल फ्रैक्शन इसका 1 है। what I am trying to say कि जब मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा तो इसका वेपर प्रेशर है वो जो हम यहाँ जिसको पार्शियल मान के चल रहे थे वो प्योर के बराबर ही हो जाएगा। सो क्योंकि हम सॉल्यूशन में हम पार्शियल लेके P1 P2 चल रहे हैं तो मैंने इसको P1 P2 मेंशन कर दिया। अगर मैं यहाँ P0 1 पे लिखूँ गलत नहीं होगा। ओके, टोटल जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो इतना है। ओके, ऐसा क्यों? अब हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर x1 का था या मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 इट इज 0, वो है नहीं। तो फिर अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है मींस आपके पास कंपोनेंट एक बच गया, एक बच गया मींस प्योर है, प्योर मींस उसका प्रेशर P2 है। ये तो हमने बताया था यहाँ ग्राफ से। ओके, अगर यहाँ पे जाए एक कंपोनेंट 0 है दूसरा 1 है तो ये सा ग्राफ आ गया। जो इंटरमीडिएट स्टेज होगी उस पर x1 की भी कुछ वैल्यू प्रेजेंट है और x2 की वैल्यू कुछ प्रेजेंट है, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो दोनों का सम होगा। ओके, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? वर्ड लाइन बोली, ठीक है। जो आप ऊपर ग्राफ देख रहे हैं इसमें जो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू mx प्लस c बनेगी और उसमें आपको इंटरसेप्ट दिख रहा है y एक्सिस। थोड़ा सा आपको समझना इसको, अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगे तो इसको हम फिर भी एक बार रिपीट कर सकते हैं, ये डाउट्स क्लियर कर देंगे। लाइन देखिए, अब जो सबसे बड़ी बात है, हम राउल्ट्स लॉ में जो डिस्कस करने वाली बात है कि सभी सॉल्यूशन जो है राउल्ट्स लॉ को ओबे करें हर कंसंट्रेशन पर, ये जरूरी नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, लॉ को एक कंसंट्रेशन रेंज पर ओबे करते हैं, उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। सुनिए मेरी बात, द सॉल्यूशंस विच ओबे Raoult's law और ए कंसंट्रेशन रेंज। एक कंसंट्रेशन रेंज पर, रेंज से मेरा मतलब कुछ डिफरेंट कंसंट्रेशन आपने ली, उस पर राउल्ट्स लॉ इज होल्डिंग गुड, तो ऐसे सॉल्यूशन को आप आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। आइडियल सॉल्यूशन के केस में देखिए, हमने सॉल्यूशन जो प्रिपेयर किया था उसकी थोड़ा सा देख लीजिए आप। सॉल्यूट लिया उसमें और सॉल्वेंट लिया बेटा,
देखना बच्चों, ध्यान से नोट करना इसको। यू हैव टेकन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सपोज योर सोल्यूट इज ए, योर सॉल्वेंट इज बी, और इस बी उसको ए भी ले सकते हैं। जो आपका सोल्यूट है, इसको मिक्स करने से पहले इसके अंदर जो इंटरेक्शन थी इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, देवर ऑफ ए टाइप। अगर हमने सॉल्वेंट लिया, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है, उनके अंदर जो इंटरेक्शन है वो बी टाइप है। जब दोनों को आप मिक्स करेंगे तो नई टाइप की इंटरेक्शन इसके अंदर आएंगी, ठीक। अगर ए टाइप की जो इंटरेक्शन है और बी टाइप की जो इंटरेक्शन है, ठीक वैसी ही ए बी टाइप की अगर इंटरेक्शंस होती हैं तो ऐसे सॉल्यूशन के केस में राउट्स लॉ ओबे होगा और ऐसे सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द सॉल्यूशंस आर नॉट आइडियल, उनको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका उल्टा, द सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट ओबे राउट्स लॉ ओवर ए कंसंट्रेशन रेंज आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्यों होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के रीजन दो होते हैं। जो आपकी नई इंटरेक्शन बनती है सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर, इंटरेक्शन ए बी टाइप की बनी, नई इंटरेक्शन ए बी टाइप की बनी। ये जो ए बी टाइप की इंटरेक्शन है, आइदर दे आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी टाइप इंटरेक्शन, और दे आर वीकर देन ए बी टाइप इंटरेक्शन। देखिए ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया आपके लिए आ रहा है। अगर हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, जो नई इंटरेक्शन है वो ए बी टाइप की है, लेकिन ये जो नई इंटरेक्शन है ये पहले वाली इंटरेक्शन से ज़्यादा है। इसका मीनिंग ये हुआ जो सोल है वो इंटरेक्ट कर रहा है सॉल्वेंट के साथ में अच्छी तरह से, उनके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन रही है। यहाँ पर ए टाइप की जो इंटरेक्शन है, बी टाइप की जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग थी, जो नई इंटरेक्शंस बनी है वो वीक है। दोबारा से बोल दूं, नई इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब इंटरेक्शन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, नई इंटरेक्शन वीक है, मींस जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन थी वो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन सॉल्यूशन के बनने पर जो नई इंटरेक्शंस आई वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऐसे सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। फर्क क्या होता है आइडियल और नॉन आइडियल में? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू नोट। फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट इन दो पॉइंट्स को रखते हैं और वो कभी समझने की कोशिश रेयरली कहने में आया है कि ये कहाँ से आया। डेल्टा एच मिक्सिंग, जो एंथैल्पी है मिक्सिंग की, वो 0 है। देखिए जब आप किसी सॉल्वेंट में, दिस इज आवर सॉल्वेंट, उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व किया तो ए बी टाइप की इंटरेक्शन कब बनेगी? जब ए के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, बी के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और ए और बी के बीच बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी, इसके लिए आप एनर्जी देंगे। सपोज आपने बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी दी 5 किलो जूल और किलो कैलोरी, कुछ भी जैसे रहेगी, जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। और बॉन्ड के ये आपको रिक्वायर्ड थी, इतनी चाहिए बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी, और जो बॉन्ड बना उसमें एनर्जी तो बैलेंस होगी। यहाँ क्या आएगा? डेल्टा एच मिक्सिंग 0 आएगा और डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 है। क्यों? क्योंकि जो नई इंटरेक्शन थी जैसी ही है। तो जो देखिए आप मेरे से, आप हम 3 ग्रुप स्टूडेंट्स के हैं, एक ग्रुप 2 ग्रुप, दोनों में अलग अलग इंटरेक्शन है। हम दोनों को मिक्स कर दिया, इंडिविजुअली दोनों बैठे हैं, दोनों ने एक वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुई, फिर भी वॉल्यूम उतना ही रहता है। जैसी इंटरेक्शन उनके बीच में पहली थी बाद में भी वैसे ही रहते हैं, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ऐसे केस में डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 होगा। ऐसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। बट यहीं से समझिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको 15 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड हुई और जब बॉन्ड बना वो आपको एनर्जी देगा 10, तो नेट क्या मिला आपको? 5। डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा। कुछ रिवर्स भी हो सकता है, ऐसा भी केस हो सकता है। यहाँ पर आपको क्या होगा? एंथैल्पी नेगेटिव रहेगा, ठीक। तो ऐसे केस में जहां डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0,
डेल्टा V mixing is not equal to 0, such solutions are called non-ideal solution। अब देखिए इनका ग्राफ जो बनेगा उसको इस फिनोमिनन को जो हमारे सामने हो रहा है, आइडियल की बात हमने की है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इजी है, यू जस्ट अंडरस्टैंड इट वंस। अभी हमने एक आइडियल सॉल्यूशन के केस में ग्राफ बनाया जो ऐसा बन रहा था, ठीक है बच्चों, ये एक कंपोनेंट को शो कर रहा है, दूसरे कंपोनेंट को शो कर रहा है, सॉल्यूशन को शो कर रहा है। दिस वाज द केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अगर हमारे पास ए टाइप की इंटरेक्शन, बी टाइप की इंटरेक्शन है और ए बी टाइप की जो नई इंटरेक्शन बनी है वो वीक है, मींस इट इज वेरी इजी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। सो व्हाट विल हैपन, more number of molecules of A, more number of molecules of B will go to the vapor phase. What will happen? Vapor pressure will increase. हम कह रहे हैं अगर ये राउल्स लॉ को मानता है, कौन, ये सॉल्यूशन राउल्स लॉ को माने तो ग्राफ ऐसा आना चाहिए। अब हम क्या देख रहे हैं, नई इंटरेक्शन वीक है तो मोर नंबर ऑफ molecules of A and B are going to the vapor phase. What will happen? Vapor pressure will be more. कितना ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा देन एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। जो इक्वेशन राउल्स लॉ ने ज्यादा मिलेगा तो व्हाट विल हैपन, प्रेशर की जो लाइन है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा से आपको दिखाता हूँ। होना ऐसे चाहिए था, नहीं होना ऐसे चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ग्राफ ऐसे मिल रहा है। व्हाट इट इज फाइन कि जो कंपोनेंट एक था उसका वेपर प्रेशर आ रहा है, ऐसे ही बी के केस में आ रहा है। अब ये हमने रिजल्टेंट वेपर प्रेशर या टोटल वेपर प्रेशर दिया था, वो भी ज़्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन बनी उनके बीच में जो फोर्स था वो वीक था, तो जो मॉलिक्यूल है सॉल्यूशन के अंदर ए बी के, उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अब एस्केपिंग टेंडेंसी कम थी, अब एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ने के कारण ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वेपर फेज में, तो अकॉर्डिंगली उनका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। हमारे पास दूसरी तरह के सॉल्यूशन भी हो सकते हैं जिनमें देखिए वंस अगेन ये ग्राफ बन रहा है राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। अगर वो राउल्स लॉ को मानता है सॉल्यूशन, ओबे करता है ओवर ए कंसंट्रेशन रेंज, तो ग्राफ शुड बी लाइक दिस। बट जो नई इंटरेक्शन बन रही है आपकी बार, वो ए या बी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा बच्चों, जो ए बी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी है सॉल्यूशन बनने के बाद, यानी इंडिविजुअली ये ए टाइप की, ये बी टाइप की, नई ए बी टाइप बनी, अब इनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, यानी वेपर फेज में जाने की जो टेंडेंसी है वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि ए ने बी को अच्छे से होल्ड कर रखा है, ए टाइप के मॉलिक्यूल्स ने बी टाइप के मॉलिक्यूल्स को अच्छी तरह होल्ड कर रखा है। राउल्ट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ग्राफ शुड बी लाइक दिस और वेपर प्रेशर शुड बी लाइक दिस, बट एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि अब लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू द वेपर फेज, वी विल गेट द ग्राफ लाइक दिस। ऐसा एक्सपेक्ट था लेकिन कम आया, क्यों, ए बी की इंटरेक्शन ज़्यादा, ऐसा एक्सपेक्टेशन थी तो ग्राफ ऐसा, और टोटल की ऐसी एक्सपेक्टेशन थी वो कम आ रहा। अब देखिए दोनों में दिस इज द पॉजिटिव डेविएशन, रास्ते से भटकना, आप एक रास्ते पे चल रहे हैं, डेविएट हो गए, ठीक है ना। अब देखिए आपके और मेरे बीच में अगर इंटरेक्शन ज़्यादा है तो आई विल गो टुवर्ड यू, आपकी तरफ जाऊंगा। अब मेरी उधर जाने की टेंडेंसी कम हो गई तो मैं नेगेटिव डेविएशन शो करूँगा। अगर मेरे और आपके बीच में इंटरेक्शन थोड़ी सी वीक हो गई तो आई विल गो अवे deviation. This is positive and negative deviation. So what we have discussed in today's video, Raoult's law, उसका डेरिवेशन हमने समझा, उसके बेस पर हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस डिफाइन किए, उसको ग्राफिकल वे से हमने समझा, कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव डेरिवेशन होते हैं वो हमने समझे। थैंक्स। ओके।